Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this video we will discuss about the chemical reactions of haloalkanes. Actually haloalkanes show nucleophilic substitution reactions, elimination reactions, and they show reactions with metals. Today we will discuss about the nucleophilic substitution reactions. All those reactions in which nucleophile substitute the another nucleophile, this type of reaction known as nucleophilic substitution reaction. Substitution by what? Nucleophile. तो वो सभी रिएक्शन जिनमें सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो उन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. Now question arises, what is nucleophile? तो nucleophile means nucleus searching. We know that nucleus philic searching, nucleus searching species are known as nucleophiles. अब nucleus searching species कौन होंगी? वो जो खुद नेगेटिवली चार्ज हो या लोन पेयर डोनर हो. तो इट मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और लोन पेयर डोनर स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज. एक्चुअली होता क्या है? लेट सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ haloalkane like this, and we know that this halogen electronegativity is greater than the carbon. अब जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हैलाइड आयन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस हैलोजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हैलोजन एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस. अब यहाँ पर जो हमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन नजर आ रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है. इट मीन्स इट कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड this acts, or you can say halogen atom with its pair of electron will leave out. Such type of reactions are known as nucleophilic substitution reactions. So look at this. Substitution of halogen atom along with its pair of electron by another stronger nucleophile known as nucleophilic substitution reaction. तो यहाँ पर क्या दिखाना है? एक न्यूक्लियोफाइल है. It will attack on alkyl halide like this. This carbon will carry partial positive charge and halogen will carry partial negative charge. What will happen? This bond will break and new bond will form like this, and such type of substitution is known as nucleophilic substitution reaction. One nucleophile gets substituted by the another nucleophile. Such type of reaction known as nucleophilic substitution reactions. यहाँ पर जिस ग्रुप ने लीव आउट हुआ उसे बोलते हैं लीविंग ग्रुप. This group is known as leaving group. It means atom, a group of atom which leave with its pair of electron known as leaving group. तो यहाँ पर leaving group को आप क्या कहते हो? Atom, a group of atom which leave with its pair of electron या electron pair known as leaving group. अब leaving group जितना better होगा उतना ही easy reactions होंगी. It means we can say better the leaving group, more facile will be the reaction. Out of the halide, iodide is better leaving group than bromide, then chloride and then fluoride. It is the better leaving group. So which is better leaving group along the halides? This is the better leaving group. It's mean iodide is the better leaving group. जितना बेहतर leaving group होगा उतना ही reaction easy होगी. अब आगे बात करते हैं, सीधे सीधे reactions के बारे में जानते हैं. First is the substitution reaction. Substitution of halogen by hydroxyl group. अगर hydroxyl group means OH negative group के थ्रू substitution होगा halogen का, इसका मतलब क्या बन रहा है? Alcohol. Alkyl halides will converted into the alcohol. तो reaction किसके थ्रू कराई जाती है? This reaction takes place in presence of aqueous alkali or moist silver oxide. You have to remember this substitution will takes place in presence of aqueous alkali or moist silver oxide. Example देखते हैं. Let's suppose ethyl bromide. I have ethyl bromide और इसका reaction किया aqueous alkali से NaOH. Then what will happen? Look at this. Which is nucleophile here?
B are partial negative and carbon is partial positive, and in this case OH is partial negative and Na is positive. यहाँ पर partial negative नहीं, negative and positive ले लेते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, substitution of Br with the help of OH, it means it gives out C2H5OH. अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है. ऐसे ही अगर ये रिएक्शन मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से कराया जाए, it gives out again alcohol. तो you have to remember, अगर अल्कोहल बनाना है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्सटीट्यूशन करना है हेलोजन का, तो we have to use aqueous alkali or moist silver oxide. Now next reaction, substitution by alkoxy group. Alkoxy group means what? OR. दिस ग्रुप इज नोन एज एल्कोक्सी ग्रुप. अब एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू अगर सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो डेफिनेटली ईथर का फॉर्मेशन होगा. तो ये किसके लिए यूज होता है? ईथर फॉर्मेशन. और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करानी है? सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में कराना है. सोडियम और पोटाशियम एल्कोक्साइड मीन्स NaOR, लाइक दिस. अगर मैं बोलती हूँ NaOCH3 सोडियम मिथॉक्साइड, इस केस में ऑक्सीजन और Na, यहाँ पर ये देखिए, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. This part means alkoxide group will act as nucleophile. तो रिएक्शन कराते हैं. लेट्स सपोज C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड की ही रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मिथॉक्साइड से, एंड दिस विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड Br will substituted by what? Methoxide. It gives out C2H5OCH3 methoxyethane, and NaBr will separate out. It is methoxyethane. Ether formation will take place, and this reaction is known as Williamson synthesis. It is name reaction. It is known as Williamson synthesis. Now next, अभी हमने दो रिएक्शंस के बारे में बात किया. सब्सटीट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करते हैं तब अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एंड रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. एंड इन दिस केस व्हाट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? OH नेगेटिव ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. हमने नेक्स्ट किया सब्सटीट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप. और अगर हम एल्कोक्सी ग्रुप के थ्रू सब्सटीट्यूशन करते हैं तब ईथर का फॉर्मेशन होगा, एंड इन दिस केस एल्कोक्सी ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. नाउ कम टू द नेक्स्ट, सब्सटीट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप. अमाइनो ग्रुप का मतलब अमाइंस का फॉर्मेशन होगा. अमाइनो ग्रुप इज व्हाट? NH2 ग्रुप. अब यहाँ पर NH2 ये इसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस का फॉर्मेशन पॉसिबल है, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी पॉसिबल है, और इसे बोला जाता है हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. इट इज़ द हॉफमैन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. अब इसमें रिएक्शन किसके साथ कराना है? रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक अमोनिया के साथ. लुक एट दिस, बाय हीटिंग विद इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, और यू कैन से अल्कोहलिक अमोनिया. कैसे होगा? अगेन लेट्स सपोज CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन मैं NH3 के साथ कराती हूँ, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. इट इज NH3 और अल्कोहलिक है. अल्कोहलिक अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करने पर व्हाट विल हैपन? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन. Br नेगेटिव विल सेपरेट आउट बाय NH2 नेगेटिव, एंड इट गिव्स आउट CH3CH2NH2. इट इज़ 1 डिग्री अमाइन, जिसे बोलते हैं इथेनामाइन. अब रिएक्शन दोबारा पॉसिबल है. इथेनामाइन फर्दर कैन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड CH3CH2Br पर अगर फर्दर ये रिएक्ट करता है, नाउ दिस पार्ट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एंड व्हाट विल हैपन्स? CH3CH2 whole twice NH. It is 2 degree amine, and its name is N-ethyl ethanamine. नॉमेनक्लेचर तो आता है, हाउएवर
I am telling you again, this 2 degree amine can react further with one more molecule of the alkyl halide, CH3 CH2Br, CH3 CH2 whole twice NH. Now this part will act as nucleophile, and what will happen? CH3 CH2 whole thrice N. It is 3 degree amine and its name is N-diethyl ethanamine. Such type of reaction, this is known as Hofmann ammonolysis of alkyl halide, in which substitution of halogen will take place by amino group or derivative, and it gives out 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. Now next, formation of higher alkynes. अब हायर एल्काइंस, लेट सपोज कि मेरे पास 2 कार्बन का एल्काइन है और मुझे 4 कार्बन एल्काइन चाहिए, तो उस केस में क्या करना होगा? ये रिएक्शंस जनरली यूज होती है जब हम कन्वर्जन्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, किसके लिए किसके साथ रिएक्शन कराया जाता है? विद सोडियम एल्काइनाइड के साथ। मुझे जितने भी कार्बन इंक्रीज करने हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग कार्बन ऐड कर सकती हूँ। लेट सपोज इथाइल ब्रोमाइड ही ले लेती हूँ मैं, और मुझे इस इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा करके 4 कार्बन का एल्काइन बनाना है। इट मीन्स 2 कार्बन ऑलरेडी आई हैव, तो 2 कार्बन एल्काइन ले लेते हैं हम। सोडियम डेरिवेटिव ऑफ एल्काइनाइड NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड वी नो दैट एल्काइन इज electronegative, that's why this carbon will carry negative charge and sodium will carry positive charge, and this part will act as nucleophile. तो substitution होकर के क्या बन जाता है? CH3 CH2 C triple bond CH. This is but1-ine. इस तरह से हम हायर एल्काइल का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफाइल। नाउ आई टेल यू न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने अभी बात की थी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, और ये ऑलरेडी या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर लोन पेयर डोनर होंगे। लुक एट दिस, न्यूक्लियस सर्चिंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। दे आर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज और हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। अब हमें जो मेन चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली मोनोडेंटेट न्यूक्लियोफाइल मीन्स व्हाट? वो सभी न्यूक्लियोफाइल जिनमें एक ही एटम एज ए डोनर एटम हो, मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हो, लाइक I नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, H नेगेटिव, OR negative, like this. In all these only there is one atom which can donate lone pair of electron. अब यहाँ पर I नेगेटिव ऑब्वियसली I करेगा, Br नेगेटिव Br करेगा, OH नेगेटिव ऑक्सीजन, H नेगेटिव H और OR नेगेटिव O. There are only one atom which is able to donate lone pair of electron. But ambidentate nucleophile का मतलब क्या हुआ? Ambi, it means there are two. यहाँ पर वो सभी न्यूक्लियोफाइल जिनमें 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट हों, ओके। बट यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है, डोनर एटम तो 2 हैं, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अगेन इम्पॉर्टेंट, तो क्या होता है एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल विच हैज मोर देन 1 डोनर एटम बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 1 एटम एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वो बात अलग है कि दूसरी बार में दूसरा कर दे, मीन्स रिएक्शन चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मैं CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ CN नेगेटिव मीन्स व्हाट? हमें पता है कार्बन और नाइट्रोजन के में ट्रिपल बॉन्ड है। अभी ट्रिपल बॉन्ड हुआ, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में। अब बचता है कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो नाइट्रोजन पर बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी नेगेटिव चार्ज भी है तो कार्बन पर 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया। इट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CN नेगेटिव। अब क्या पॉसिबिलिटी है? कार्बन पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स कार्बन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म बॉन्ड। इट मीन्स कार्बन अब इस केस में डोनर एटम हुआ, बट नाइट्रोजन भी तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, बट इट हैज 2 डोनर एटम्स, बट
lone pair will be donated by one atom at a time. एक बार में सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन. ओके, सच टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स आर नोन एज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल. अब बात करते हैं NO2 नेगेटिव की. इसका स्ट्रक्चर देखना है. नाइट्रोजन पर 5 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की, दिस वन. दूसरा ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की, दिस वन. अब यहाँ पर ऑक्सीजन NO2 नेगेटिव है, इसका मतलब ऑक्सीजन पर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और चार्ज नेगेटिव है. इट मीन्स दिस ऑक्सीजन can donate pair of electron and nitrogen can also donate pair of electron. NO2 negative also has 2 donor atom but only one atom will donate pair of electron at a time. Such type of nucleophiles known as ambidentate nucleophile. तो अब हम ambidentate nucleophile का ही यूज़ करते हुए आगे की रिएक्शंस करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने वाले हैं. तो नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड. एल्काइल साइनाइड, अगर एल्काइल साइनाइड बनाना है इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हैलोजन का हो रहा है साइनो ग्रुप के थ्रू, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, पोटाशियम साइनाइड, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम साइनाइड. लेट सपोज मैंने C2H5Br का रिएक्शन KCN से करवा दिया, एल्कोहलिक KCN से कराया, तो CN नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड इट will gives out C2H5CN. यहाँ बन रहा है साइनोईथेन. अब यहाँ पर CN है, सिर्फ बॉन्डिंग कार्बन के थ्रू ही है, नाइट्रोजन के थ्रू भी तो हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, इसके लिए भी हम आगे डिस्कस करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड. अगर एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाना है तब क्या करना होगा, उस केस में आपको जो रिएजेंट यूज़ करना है वो यूज़ करना है अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड. यू हैव टू रिमेंबर, अगर साइनाइड बनाना है तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम साइनाइड, और अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड. रिमेंबर दैट. वाई, अभी बात करते हैं. देखिए, सिल्वर साइनाइड, लेट सपोज C2H5Br का रिएक्शन AgCN से कराया, अल्कोहलिक से कराया, तो इट गिव्स आउट C2H5NC लाइक दिस. इट इज इथाइल आइसोसाइनाइड. वाई, ऐसा क्यों हुआ, हमें पता है कि CN एक एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है. अगर मैं पोटाशियम साइनाइड से करवाती हूँ तो साइनोएल्केन बना, सिल्वर साइनाइड से कराती हूँ तो आइसोसाइनाइड बना. ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. आई टेल यू, CN नेगेटिव इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल. इट मीन्स अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तब क्या बनता है, साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन करता है तब बनता है आइसोसाइनाइड. ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई है. अगर कार्बन ने डोनेट किया तो क्या बना, साइनाइड बना, लेकिन अगर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तब क्या बना, आइसोसाइनाइड बना. इट इज इथाइल आइसोसाइनाइड, इट इज साइनोईथेन, एंड दिस वन इज इथाइल आइसोसाइनाइड. ओके, अब क्या रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है. हमें ये बात पता है कि CN नेगेटिव एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरी चीज़ हम ये भी जानते हैं कि पोटाशियम साइनाइड या फिर हम सोडियम साइनाइड इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कंपाउंड्स आयनिक हैं, प्रीडोमिनेंटली आयनिक हैं. और आयनिक का मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन है कार्बन के थ्रू, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर. मतलब नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन बॉन्ड. दैट्स वाई बॉन्डिंग कहाँ से हो रही है, कार्बन से हो रही है. कि ये आयनिक है, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, NaCN, और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन C को दे देगा, CN को दे देगा. इट्स मीन कि यहाँ पर क्या बनता है, CN नेगेटिव बनता है, और CN नेगेटिव में से कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एप्लीकेबल हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के. But carbon of alkyl group or nitrogen of CN negative group will form bond which is not so stronger formed by the carbon of alkyl and carbon of CN of CN negative nucleophile.
It means that bond formed by the carbon-carbon is more stronger in comparison to carbon-nitrogen, so alkyl cyanides are the major product. अब हम अगर बात करते हैं सिल्वर साइनाइड की, तो सिल्वर साइनाइड के केस में सिल्वर साइनाइड इज कोवेलेंट इन नेचर. अब यहाँ कोवेलेंट नेचर होने की वजह से अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर AgC ट्रिपल बॉन्ड N लाइक दिस. कार्बन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्डिंग विथ सिल्वर. Now carbon do not have any pair of electron to donate for the bonding, but nitrogen has pair of electron. It means bonding किसके थ्रू होनी चाहिए, नाइट्रोजन के थ्रू होनी चाहिए, और अगर बॉन्डिंग नाइट्रोजन के थ्रू है that's why isocyanides will be the product. तो हम कह सकते हैं Cn नेगेटिव इज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल. अगर कार्बन साइड से बॉन्डिंग है इट मीन्स साइनाइड विल बी फॉर्म्ड, नाइट्रोजन साइड से है देन आइसोसाइनाइड्स विल बी फॉर्म्ड. अगर सोडियम या फिर पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन है बिकॉज ऑफ आयनिक करेक्टर, आयनिक नेचर ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कार्बन साइड से है, दैट्स वाई साइनाइड्स आर द मेजर प्रोडक्ट. पर अगर हम यही बात करते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ, तो सिल्वर साइनाइड नेचर इज कोवेलेंट, और कोवेलेंट होने की वजह से कार्बन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, नाइट्रोजन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई नाइट्रोजन विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड आइसोसाइनाइड विल बी द प्रोडक्ट. तो हम इसे सम अप कर देते हैं लाइक सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड, एनीथिंग वी कैन टेक इट. तो Cn में से कार्बन विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. और अगर रिएक्शन कराई जाए लेट्स सपोज मिथाइल ब्रोमाइड से, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पर Br विल हैव पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा कार्बन की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट है CH3Cn एंड यू कैन से इट मिथाइल साइनाइड. अब अगर यही रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ हो, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड CH3Br, Br will carry partial negative and carbon will carry partial positive charge, and this lone pair of electron it can be donated to the alkyl group and Br negative will separate out CH3 and C will be the product. It means methyl isocyanide will be the product. तो ध्यान रखना है अगर अल्कली मेटल साइनाइड है तो उस केस में मीन्स सोडियम या पोटाशियम साइनाइड को यूज़ किया गया एज रिएजेंट, तब साइनाइड बनते हैं, और सिल्वर साइनाइड यूज़ किया गया है तो आइसोसाइनाइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट. नाउ वी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइड्स एंड नाइट्रो एल्केन्स. अब यहाँ पर एल्काइल नाइट्राइड्स और नाइट्रो एल्केन्स की बात हो रही है. इट्स मीन सब्सटीट्यूशन बाय नाइट्राइड ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप है. अगर मैं यही रिएक्शन लेट्स सपोज CH3Br, ये रिएक्शन पोटाशियम या फिर सोडियम नाइट्राइड के साथ, इट मीन्स इट इज द पोटाशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्रेट. मैं यहाँ लिख देती हूँ पोटाशियम नाइट्राइड एंड इट इज सिल्वर नाइट्रेट. इनके साथ की जाती है तो प्रोडक्ट्स आर CH3ON डबल बॉन्ड O. इट मीन्स इट इज मिथाइल नाइट्राइड. और सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रोडक्ट इज CH3NO2. इट मीन्स नाइट्रोमीथेन. ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर अगर पोटाशियम साल्ट है तब नाइट्राइट बन रहा है, सिल्वर साल्ट है तब नाइट्रो कंपाउंड्स बन रहे हैं. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो अगेन हम अगर इस न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं तो दिस न्यूक्लियोफाइल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. Okay, this oxygen has extra electron, nitrogen has extra electron. It is also applicable to donate pair of electron and nitrogen is also applicable to donate lone pair of electrons. अब अगर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है तब बनता है नाइट्राइट, और नाइट्रोजन के थ्रू होती है तब बनते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स. यही
फीचर है, इसी को ध्यान रखना है। पोटाशियम नाइट्राइड अगेन आयनिक कंपाउंड है, सो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है और ऑक्सीजन इज मोर एप्लीकेबल टू डोनेट बॉन्ड टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। और सिल्वर नाइट्रेट के केस में अगेन सिल्वर और ऑक्सीजन के मिड यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा और फर्दर से नाइट्रोएल्केन्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस एंड इन नेक्स्ट video we will talk about the mechanism of the SN reaction. It's mean nucleophilic substitution reaction. Till then, goodbye.